Okay, so today we will be talking about the types of reflection now. So you see, there are broadly two types of reflection. One is called the regular reflection of light. Now, observe this particular figure closely. Okay, regular reflection. Okay, now if you observe this, this is light ray number one, light ray number two, and light ray number three. These are three light rays, and as you can see that these light rays are mutually parallel to each other, aren't they? They are parallel to each other. Now these light rays, they incident on a mirror. This is a mirror. Now here this mirror is actually a plane mirror. It is a प्लेन मिरर. नाउ प्लेन मिरर बिकॉज इट हैज अ प्लेन सरफेस. अच्छा, मिरर कैसे बनेगा? तो याद रखिए कि आप एक लाइन बना देंगे वो मिरर नहीं होगा, आपको ये ऐसी शेडिंग करनी होगी. जब आप ये शेडेड करते हैं तब उसको मिरर बोला जाता है, अदरवाइज वो मिरर नहीं होता है. डू रिमेंबर दैट. ओके, ना आप देख सकते हैं कि जब ये प्लेन मिरर पे इंसिडेंट होती है लाइट रेज जो कि म्यूचुअली पैरेलल टू ईच अदर हैं, तो रिफ्लेक्शन के बाद में भी वो क्या रहती हैं? एक दूसरे के पैरेलल बनी रहती हैं. एज यू कैन सी दैट दे remain parallel to each other after reflection as well, aren't they? They are. So you can see here that such a reflection is actually is taking place in a very regular or ordered manner. That's why such a reflection is called regular reflection. Okay, such a reflection is called regular reflection of light. Okay, now one more thing, do remember that laws of reflection are followed here. Angle of incidence is equals to angle of reflection. Here also it is, and here also. In all these cases the laws of reflection are followed, and angle of incidence is equal to angle of reflection. Okay, angle of incidence is equal to angle of reflection, correct? Now you do remember this, that these points of incidence, they are different. Okay, you can see that they are different point of incidence, but at all the point of incidence the regular reflection will be there, means the laws of reflection would be followed. So such a reflection is said to be regular reflection of light when a beam of light consists of parallel light rays incident on a surface and gets reflected back such that parallel light rays remain parallel after reflection. तो इसे हम क्या कहते हैं? रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं. सच अ रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. ठीक है, अब बात आती है इररेगुलर रिफ्लेक्शन की. अब जरा ध्यान से समझिएगा. इररेगुलर रिफ्लेक्शन, दिस इज इररेगुलर रिफ्लेक्शन. नाउ यू सी द सरफेस व्हिच इज देयर इज नॉट अ प्लेन सरफेस, इट्स अ रफ सरफेस. ये जो सरफेस आपको दिखाई दे रही है ये कैसी सरफेस है? इट्स अ रफ सरफेस. और ये जो रफ सरफेस है, ठीक है ना, तो अनइवन सरफेस है, रफ है मतलब अनइवन सरफेस है. अब आप देखिए ये डिफरेंट पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं. ठीक है, इन पॉइंट्स पर क्या हो रहा है? लाइट इंसिडेंट हो रही है. दिस इज लाइट रे नंबर 1, light ray number 2, light ray number 3. Okay, these light rays, they incident like this. So this is the first light ray, this is the second light ray, and this is the third light ray. Now what is happening here is at these points of incidence, what is happening that the reflection will take place, है ना, रिफ्लेक्शन होगा. अब जब रिफ्लेक्शन होता है तो आप देखिए ये वाली लाइट रे इस तरह से रिफ्लेक्ट हुई और ये वन डैश बनाती है ना, ये वन डैश बनाया. ये जो सेकंड लाइट रे है जो इस तरह से आई, यहाँ पर इंसिडेंस हुई, ये 2 डैश बना रही है. ये थर्ड लाइट रे यहाँ पर आई और ये 3 डैश बना रही है. ओके, सो लाइक दिस रिफ्लेक्शन इज एक्चुअली टेकिंग प्लेस. अब यहाँ आपको एक बात बहुत ध्यान से समझनी है कि ये जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है. ठीक है, इस पॉइंट पर अगर हम बात कर रहे हैं तो देखिए इस पॉइंट पर अगर मैं ये प्लेन सरफेस यहाँ पर ऐसा ले लेता हूँ, एक छोटा सा सरफेस प्लेन ले लेता हूँ, तो इस प्लेन पे इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे ये नॉर्मल है. देखिए ये 90 डिग्री होना चाहिए तभी तो नॉर्मल होगा. तो यहां पर ये 90 डिग्री है और ये नॉर्मल हो गया. अब बात करता हूं इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस की. जो दूसरा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आपको दिखाई दे रहा है उसको देखिए, यहां ध्यान से देखिए. इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे अगर मैं एक पैरेलल लाइन बना रहा हूं, देखिए तो ये जो है ये 90 डिग्री दिख रहा है आपको यहां पर. ठीक है ना, तो ये नॉर्मल हो गया इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे. अच्छा, पर इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे अगर मैं एक छोटा सा नॉर्मल बनाता, एक छोटा सा प्लेन सरफेस बनाता हूं, है ना, क्योंकि बहुत छोटा जो सरफेस होगा वो प्लेन होगा, और वहां पर अगर मैं बनाता हूं और इसके बाद में मैं क्या करता हूं, यहां पर ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं इस पॉइंट पे, तो देखिए यहां क्या हो रहा है, ये भी 90 डिग्री, ये भी नॉर्मल है. आप ध्यान से समझिए, अगर मैं ये बोल रहा हूं इसको N1 नॉर्मल फॉर फर्स्ट पॉइंट, N2 नॉर्मल फॉर सेकंड पॉइंट एंड N3 नॉर्मल फॉर थर्ड पॉइंट. अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलोड होंगे? Will the laws of reflection followed in case
ऑफ इरेगुलर रिफ्लेक्शन? क्या बोलते हैं आप? क्या लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, क्या लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलोड होंगे? व्हाट डू यू थिंक? वेरी गुड, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलोड होंगे, बिल्कुल होंगे। याद रखिएगा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होता है। यहां भी एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर है, यहां भी एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर है, यहां भी एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर है। लेकिन फिर आप देख सकते हैं कि ये 1 डैश 2 डैश 3 डैश एक दूसरे के पैरेलल नहीं है। आफ्टर गेटिंग रिफ्लेक्शन दे आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर। तो ऐसा कैसे हो सकता है? रिफ्लेक्शन के बाद में ये पैरेलल नहीं है एक दूसरे के, रिफ्लेक्शन के बाद में ये पैरेलल नहीं है एक दूसरे के, लेकिन यहां पर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो हो रहा है। याद रखिए, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि यहां पर एक्चुअली देखिए, पिछले वाले केस से अगर आप कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो पोजीशन ऑफ नॉर्मल है वो पॉइंट टू पॉइंट वेरी कर रही है। देखो यहां पर इस पॉइंट पे पोजीशन ऑफ नॉर्मल का डायरेक्शन क्या है, वो इस तरह से, देखो ये रहा नॉर्मल का डायरेक्शन। इस पॉइंट पे नॉर्मल का डायरेक्शन क्या है, देखो ये दिख रहा है, ये है नॉर्मल का डायरेक्शन। इस पॉइंट पे नॉर्मल का डायरेक्शन क्या है, वो ऐसा है। मतलब नॉर्मल का डायरेक्शन जो है वो वेरी करता जा रहा है। नॉर्मल का डायरेक्शन वो कांस्टेंट नहीं है, इट कीप्स ऑन वेरिंग। और क्योंकि वो वेरी कर रहा है तो इसलिए जो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज वो पैरेलल नहीं है। लेकिन याद रखिए, भले ही वो पैरेलल नहीं है लेकिन लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों तरह के रिफ्लेक्शन, वेदर इट इज रेगुलर और इरेगुलर, दोनों में ही लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होते हैं। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। हाँ, लेकिन यहां इरेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है? इरेगुलर रिफ्लेक्शन में ये होता है कि लाइट रेज जो हैं रिफ्लेक्शन के बाद में एक दूसरे के पैरेलल नहीं रह पाती हैं, दे वोंट रिमेन पैरेलल आफ्टर रिफ्लेक्शन। ओके, वो रिफ्लेक्शन के बाद में पैरेलल नहीं रह पाती हैं, दे वोंट रिमेन पैरेलल आफ्टर रिफ्लेक्शन। ओके, इवन दो दे फॉल पैरेलल टू ईच अदर, वो एक दूसरे के पैरेलल आती हैं, 1 2 3 जो है पैरेलल है, लेकिन रिफ्लेक्शन के बाद में वो एक दूसरे के पैरेलल नहीं है। और इसलिए इस तरह के रिफ्लेक्शन को हम क्या कहते हैं? इररेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। सच अ रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड इररेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस को हम देखने की कोशिश करते हैं। विच ऑब्जेक्ट डज नॉट रिफ्लेक्ट मोर लाइट? कौन सा ऑब्जेक्ट ज्यादा लाइट रिफ्लेक्ट नहीं करेगा? पॉलिश सरफेस, शाइनिंग सरफेस, अनपॉलिश सरफेस, या दोनों? याद रखिए कि जो पॉलिश्ड सरफेस होती हैं वो ज्यादा रिफ्लेक्ट करती है। शाइनिंग सरफेस जो रहती है, शाइनी सरफेस जो होती है, वो भी ज्यादा रिफ्लेक्ट करती है लाइट को। अनपॉलिश सरफेस जो होती है वो रिफ्लेक्ट ज्यादा नहीं करती लाइट को। तो इसका जो आंसर है वह है अनपॉलिश्ड सरफेस, क्योंकि वो ज्यादा रिफ्लेक्ट नहीं करेगी। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेम अ मेटल विच इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट। ऑप्शंस हैं आपके ये, तो याद रखिए कि बेस्ट रिफ्लेक्टर जो होता है लाइट का वह है सिल्वर। सिल्वर इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट। सिल्वर जो है वह लाइट का बेस्ट रिफ्लेक्टर। आगे है, ओके, इंसिडेंट रे इज द पॉइंट एट विच इंसिडेंट रे फॉल्स ऑन द मिरर। कौन सी होती है इंसिडेंट रे? तो वो रे द रे ऑफ लाइट विच फॉल्स ऑन द मिरर सरफेस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे, है ना। जो मिरर सरफेस पे फॉल होती है उसे हम इंसिडेंट रे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, when a parallel beam of incident light is reflected as a parallel beam in one direction, this reflection is known as, of course it is known as regular reflection of light. okay, so ये जो है ये regular reflection of light होता है, क्योंकि आपको पता है कि अगर पैरेलल हैं लाइट रेज और वो रिफ्लेक्शन के बाद में भी एक दूसरे के पैरेलल रहती हैं तो इसको हम रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। We see the image of our face when we look into the mirror, it is due to, तो ये किसके कारण होता है? हम जब मिरर में अपना फेस देखते हैं तो डू रिमेंबर दैट इट इज ड्यू टू द रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। वो किसके कारण होता है? रेगुलर रिफ्लेक्शन के कारण होता है, दैट इज ड्यू टू द रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो वो किसके कारण होता है? रेगुलर रिफ्लेक्शन के कारण होता है। याद रखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं भूल गया हूं, मैं आपको बता देता हूं वो पॉइंट। याद रखिएगा कि जब भी कभी रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है ना, ये मैं पॉइंट वहीं बताता हूँ, रेगुलर इरेगुलर रिफ्लेक्शन के वहीं पर बताता हूँ। जब भी कभी रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, याद रखिएगा, जब भी कभी रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है तो रेगुलर रिफ्लेक्शन जब किसी सरफेस से होता है तो हमें वहां पर
क्या दिखाई देती है, इमेज दिखाई देती है। ओके, वी आर एबल टू सी द इमेज, है ना, हमें इमेज दिखाई देती है। लेकिन जब भी कभी इररेगुलर रिफ्लेक्शन होता है किसी सरफेस से, जब भी कभी इररेगुलर रिफ्लेक्शन होता है तो हमें इमेज यहां पर सरफेस में इमेज दिखाई नहीं देती है। वी वोंट बी एबल टू सी दी इमेज हियर इन दी इररेगुलर रिफ्लेक्शन। तो याद रखिए, इसीलिए तो हम जो है हमारी इमेज जो है प्लेन मिरर में देख सकते हैं। वी कैन सी आवर इमेज इन अ प्लेन मिरर, बट वी कांट सी इट इन अ न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर में नहीं देख सकते, क्यों? क्योंकि न्यूज़पेपर की सरफेस भले ही हमें कितना ही लग रहा हो कि वो कैसी हो, फ्लैट सरफेस हो, प्लेन सरफेस हो, लेकिन माइक्रोस्कोपिकल लेवल पर उसमें क्या होती है, इररेगुलरिटीज होती है। तो ये जो आपका लास्ट क्वेश्चन था कि व्हेन अ पैरेलल बीम ऑफ इंसिडेंट लाइट इज रिफ्लेक्टेड एज अ पैरेलल बीम इन द डायरेक्शन, दिस रिफ्लेक्शन इज नोन एज, याद रखिए ये जो है रेगुलर रिफ्लेक्शन है। सच अ रिफ्लेक्शन इज रेगुलर रिफ्लेक्शन। वी सी द इमेज ऑफ आवर फेस व्हेन वी लुक इनटू द मिरर बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन, ऑफ कोर्स, है ना। इसका आंसर है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, द इमेज फॉर्म्ड ऑन अ सिनेमा स्क्रीन इज एन एग्जांपल ऑफ। देखिए, इमेज दो प्रकार की होती है, एक होती है रियल इमेज, एक होती है वर्चुअल इमेज। तो जो इमेज सिनेमा स्क्रीन पे बनी थी कि रियल इमेज होती है वो, याद रखिए स्क्रीन पर अगर कोई इमेज बन रही है तो स्क्रीन पर जो इमेज बन रही है वो हमेशा रियल इमेज ही होगी। ओके, द इमेज विच इज फॉर्म्ड ऑन स्क्रीन इज ऑलवेज अ रियल इमेज ओनली। आई होप दैट दिस इज क्लियर टू यू। थैंक यू।